Okay, the recording has started. Uh, is there anyone who has attended at least one course from me in IBA? Yes, sir. How many? एक yes sir आया. Sir, 4 लिए थे. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा कोर्स लिया था? Sir, Cal 2, Cal 3, Real Analysis और Astronomy. अरे तो इसका मतलब है EM students are also sitting here. जी sir. Just for attending the class, or you are enrolled in the class? I'm enrolled in the class, sir. That's good. And I don't mind if anyone comes to this class. Wait. Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. There is no background sound. Not that we can hear, sir. अच्छा, क्योंकि मैंने अभी तक वो ईयरफोन नहीं लगाया था ना प्लगिंग इन. Is it still clear or more clear than before? It's less clearer, sir. Clear है, that's good. Our headphone was better. Without Less clear, sir. Less clear. without headphone it was better. Yes, it was better. अच्छा तो हटा दूं हेडफोन. असल में वो हेडफोन I'm sitting at home. I'm not in IBA. Even if I was in the IBA office or class, there may have been some disturbance, and if I don't use the headphone, then अब ठीक है सर. अब ठीक है. It's alright because आपका mic करीब आ गया ना तो सही है. हाँ तो मैंने माइक करीब कर लिया, बल्कि I'll keep it like this. समटाइम्स ये होता है घर में हो या ऑफिस में हो, कोई ना कोई इधर से डिस्टरबेंस होती है, तो वो हेडफोन में नहीं आती इतनी डिस्टरबेंस जितना बगैर हेडफोन के आती है. इसलिए आई यूजुअली प्रेफर टू यूज हेडफोन. ओके, if you people need if you people need my introduction, I can spend some time introducing myself. If you already know me very well, then I'll not waste any time in that. So, you know me very well and don't want my introduction, huh? Hello? Yes, sir. If you want to. नहीं मुझे तो मैं तो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता. I want to go to the teaching process directly. सर कुछ बच्चे कह रहे हैं इंट्रोड्यूस कर दें चैट में. अच्छा, चैट में इंट्रोड्यूस कर दूं या चैट में कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कर दूं? दूसरा जी वो Okay. चैट में कह रहे हैं. अच्छा. Okay, let me do that briefly. I used to sit in the position that you are in Karachi University way back in 1976 to 1981, the first leg of my studentship, and did my honors in applied mathematics. Later on, I worked as a trainee programmer and then later then as a computer programmer in UPL Computers Division from 1980 to 83. And then I never enjoyed, although the job of programming in COBOL and assembly and making systems for the bank was not really uninteresting, but I could not enjoy myself doing that. So I came back and did my MSc Applied Mathematics with the specialization in quantum mechanics and astronomy. And in some time I spent in the Atomic Energy Commission as a fellow for nuclear engineering, but I left that for teaching position at Karachi University in 1984. Since 1984, I have been teaching, and I discovered that teaching is my passion, and teaching mathematics particularly is the best thing that I can do. So
I joined as a lecturer in Karachi University in 1984. I did my MPhil in quantum mechanics, supersymmetric quantum mechanics was the area of my MPhil study, which is related to particle physics as well as unification theory. Perhaps you have heard the term GUT, the grand unification theory. It is the same area in which Dr. Abdul Salam worked and was successful in achieving a single theory to describe weak force and electrostatic force on which he got Nobel Prize. And in those times, I had the pleasure of going through some research papers written by Dr. Abdul Salam and learned a lot from there. Later on, I switched my field of research and did my PhD in mathematical astronomy. And with IBA, I'm associated since 2002 when IBA invited me to teach as visiting faculty. So from 2002 to 2005, I taught as visiting faculty. Later on, when Dr. Ishak came as a director, the famous former State Bank Governor, Dr. Ishaq Hussain, who is now advisor to the Prime Minister, working for, I don't know, improvements or mismanagement. I really can't say. But he invited me to join IBA full time. And 2010, June, I joined there. The task that he gave me was to establish Department of Mathematical Sciences and start the undergraduate program. So I started in collaboration with the economics department this BSEM program, and later on the undergrad program, economics maths bachelor's, was completely Dr. Ishaq's brainchild. I just followed his instruction, and definitely I also push my own expertise to develop the program and improve upon the idea. And but the graduate program and the postgraduate program, that is MS, MPhil, and MS and PhD in mathematics, ये मैंने महेश साहब को मजबूर किया कि शुरू करें, क्योंकि one of the tasks that I was given, apart from developing the Department of Mathematical Sciences, was to acquire or find out potential faculty members, and I was able to get some fresh PhDs, and I forced शेषर साहब के मेरे पास PhD faculty आ गई है. अगर इनके पास रिसर्च कंडक्ट करवाने की रिसर्च कंडक्ट करने की, रिसर्च सुपरवाइज करने की चांसेस नहीं होंगे, तो ये बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे हमें, क्योंकि once a person has done PhD, he wants to develop further on the research base that he has gained in PhD, and for that he needs she needs students, research students, and in at least in Pakistani environment, research जो है वो independent groups है, independent individuals और independent groups में नहीं होती, बल्कि जब कोई स्टूडेंट आता है रिसर्च करने के लिए तो सुपरवाइजर. एनीवेज, MS and PhD फिर मैंने उनको फोर्स किया, एंड ईशा साहब ने मुझे कराची यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे लिया था, and around 5.5 years, and I worked for IBA full time and then came back. Now I'm retired from the regular service, and still आपका जो चेयरमैन है मैथमेटिक्स का, पहले जुनैद था, वो हिशाम है, दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं. वो बसित रहते हैं कि नहीं आप पढ़ाएं, हालांकि मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का, आराम से बैठूं यार, रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करूं, बट नो, हिशाम
and Junaid, in collaboration with the efforts of my wife, जो कहती है कि घर में मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो. So I am here and still teaching at IBA. कराची यूनिवर्सिटी में पिछले सेमेस्टर तक पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं और ऑनलाइन टीचिंग और उनका जो वो सिस्टम है, क्या नाम है, hybrid system is not very well defined and people are so much confused there. Though I'm not confused, I can manage as I've got the experience from this IBA during spring as well as summer, and I'm now comfortable conducting classes in online on Zoom. So that's it. This was my introduction. The huge class of 87, and now I have got 49 participants. I'm recording this lecture, and I'll share this recording with all of you. And एक चीज जो आप लोगों के एडवांटेज में दे दी है IBA ने कि मुझे चुपके से उन्होंने कहा है कि अटेंडेंस की फिक्र नहीं करना. बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो हमारा 75 मिनट्स का सेशन होगा 2 दफ़ा वीक में, एक तो ये सफिशिएंट नहीं होगा. मैं आपको जो कुछ इसमें पढ़ाऊंगा, you will find at times that I'm going too fast and you may not be able to follow everything and you will have a lot of queries. मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना WhatsApp नंबर शेयर किया है आप लोगों को थ्रू IBA सिस्टम, जो ईमेल का सिस्टम है, ERP का, और जो SMS का सिस्टम है. तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके पास मटेरियल होगा, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ. हाँ, ये बता दूं कि आज जो कुछ मैंने पढ़ाना है वो ज़्यादातर मटेरियल मैं अपलोड कर चुका हूँ आपके LMS पे. क्या किसी ने देखा है वो मटेरियल? LMS विजिट किया है फॉर दिस कोर्स? यस सर, किया था. जो जो चीजें थी उसको देखा था. कोर्स आउटलाइन होगी उसके ऊपर सिलेबस के नाम से, और Yes, उसके sir. अलावा रिसोर्सेज में भी सर कोर्स आउटलाइन है, और जो मैंने आज पढ़ाना है उसमें से कुछ चीज़ें अपलोडेड हैं LMS पे. तो वही मैं सर डिस्कस कर. जी सर, कुछ टॉपिक्स हाईलाइट हुए थे, उसका क्या मतलब है? हाईलाइट से क्या मतलब है? वो कोर्स आउटलाइन में, वो मैं जी। कोर्स आउटलाइन को मैं दोबारा अभी आई स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग, आई विल फर्स्ट डिस्कस द कोर्स आउटलाइन. तो वो जो येलो हाईलाइट हुआ था वो पिछले सेमेस्टर का की कार्रवाई थी कि जब मैं पढ़ाता चलाता था कि ये टॉपिक हो गया है तो मैं उसको येलो हाईलाइट कर देता था और बीच में फिर वो प्रैक्टिस छोड़ दी थी. तो वहीं से मैंने उसको मॉडिफाई करके एडिट करके आप. बट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन विद यू and you can see that. So I'm switching to sharing screens with you people, and what I need to do is yes. So here it is. Can you see this Word document at the top? It is written Institute of Business Administration course outline. Can you see this? Yes. So this says that we are going to meet twice a week on Zoom for 75 minutes session, Mondays and Wednesdays. Today is a special session because of I missed the class last time. The two books that I have mentioned here at the top, Applied Numerical Analysis by Gerard and Wheatley, 7th edition. I will share this with you both on Facebook as well as on LMS, so that you have this book. वैसे ये किताब जो है ये न्यूज़पेपर प्रिंट में अवेलेबल है,
और चूंकि किसी को पाबंदी नहीं है कि वो कैंपस आए जाए, तो इफ़ यू गो टू द कैंपस यू कैन आस्क हमारे जो फोटो शॉप है अली वगैरह से, आप पूछें उसको बर्डन एंड सॉरी जिराड एंड बीटली की न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो वो न्यूज़पेपर प्रिंट मिल सकता है अगर आपको न्यूज़पेपर प्रिंट चाहिए तो। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं जो किताब सॉफ्ट कॉपी इसकी PDF शेयर करूँगा, दैट विल बी हेल्पफुल। Now here you see that nothing is highlighted, and I'll talk about these topics a little later. Just wanted to show that the course outline is modified from what I uploaded on LMS, especially assessment scheme is changed. There is no midterm in this semester, and there will be final exam. I don't bother whether it will be physical or it will be online. I'm comfortable with online. I manage it during summer. I can manage this here as well. 30% weightage is for quizzes, and it is the quizzes that are in fact true online evaluation. Quizzes में मैं ऐसा करता हूँ कि शॉर्ट क्विज दिया जो 5-10 मिनट में हो जाए। अगर 10 मिनट रिक्वायर्ड हैं एक क्विज सॉल्व करने के लिए, आई विल गिव यू 15 to 20 मिनट्स, और वो जो 20 मिनट का टारगेट होगा उसमें आपने ये क्विज सबमिट करना है। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सबमिटिंग क्विज? आपने एक कागज पर एक क्विज का क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करके उसकी पिक ली, और किसी भी जरिए से आप मुझे उसको पहुंचाएंगे विद इन दैट 20 मिनट्स विंडो। और अगर 20 मिनट विंडो में नहीं आया तो योर क्विज इज गॉन। सो पिक लेके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे m.qureshi@iba जो मेरा IBA का ईमेल एड्रेस है उस पर भेज सकते हैं। आप LMS पे अपलोड कर सकते हैं। व्हेन आई schedule quizzes on LMS, you can upload there and the grading can be done there. हाँ, अगर somebody was saying something, अगर आपने 10 में से 8 क्विज मिस कर दिए तो क्या होगा, है ना? उसका सर कभी कभी हाँ सर बोलो। कभी कभी क्लास लेने का भी इशू हो जाता है, कभी इंटरनेट इशू वगैरह, तो किसी का मतलब क्विज वगैरह का वो इशू हो जाता अच्छा, जो साहब बोल रहे हैं जरा नाम बताएंगे अपना? है। सर ऋतिक, है ऋतिक सर ऋतिक। ऋतिक। जी। ऋतिक, this is the most frequently reported problem. तो तुम भी सीखोगे और मैंने भी सीख लिया है। जिस दिन क्विज होता है ना, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, और मेरा जो डेटा है वो बता रहा है कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। For instance, right now there are 50 students. If they are genuine students, 50 students are attending this class. लेकिन अगर मैं ये अनाउंस कर दूं कि फलानी तारीख को आपका क्विज है, उस दिन 86 में से 80 स्टूडेंट जो है वो मौजूद होंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये कि पावर फेलियर, तो भाई इस वक्त मैंने लैपटॉप जो है अपना उसको भी चार्ज लगाया हुआ है चार्जिंग पे, और मेरा जो साथ में वाईफाई डिवाइस है वो भी चार्जिंग पे लगी हुई है, सो दैट मैक्सिमम चार्जिंग इज अवेलेबल अगर लाइट चली जाए तो। लेकिन मेरे पास बंदोबस्त है, अगर लाइट चली जाए तो मेरे यहाँ जनरेटर चल पड़ता है। आपके पास हो सकता है ना हो, आपका फ़ोन जो है या आपका लैपटॉप या जिस पे भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। यस, प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स वी हैव स्पेशल ट्रीट देम एज स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एंड जिस तरह हम आम क्लासेस में करते हैं कि यार अच्छा तुमने 4 क्विज मिस कर दिए हैं, ओके मैंने 10 क्विज कंडक्ट किए तो मैं 6 बेस्ट काउंट कर लूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई इशू नहीं है। हाँ, असाइनमेंट 30% वेट मैंने असाइनमेंट में रखा है, तो
मेरी कोशिश होगी कि every 2 week one assignment which will be of substantial size, जिसमें तुम्हें हाथ से करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है कैलकुलेटर इस्तेमाल करके, या हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि हमने एक्सेसिवली इस कोर्स में एक्सेल इस्तेमाल करना है। और तुम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, जो मेजॉरिटी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की है, इवन मैं ईएम के स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि प्रोग्रामिंग जो है वो करें। लेकिन मैं कभी भी प्रोग्रामिंग जो है उसको फोर्स नहीं करता। सूडो कोड्स डिस्कस करता हूँ, एल्गोरिथम्स डिस्कस करता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि आप किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। बाकी 40% एग्जाम जो फाइनल है वो देखी जाएगी कैसे होता है कैसे नहीं होता। ओके, तो दिस इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि पहले जब मैंने कोर्स आउटलाइन अपलोड की थी उसमें मिड टर्म भी लिखा हुआ था और क्विज असाइनमेंट्स के 15% थे। So quiz 30%, assignment 30%. So 60% of evaluation is to be done during the semester, and I'll go for only 40% for the final exam. Physically ho ye ya online ho, whatever. The least weight, lesser weight is for final, and more weight is given during semester evaluation. So that was about the course outline. Uh, I'm not discussing topics of the course outline because I'll first go through an introduction to numerical analysis, and then perhaps may come back to the course outline. Can you Sir, see all this? जी, बोलो। all classes will be conducted online, मतलब on site नहीं होगा? ये IBA ने जो मुझे ईमेल मिला है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शंस आई हैं फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अगर आप के पास रिसोर्सेज हैं, आपको पावर फेलियर का मसला नहीं है तो आप घर बैठें। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, पावर फेलियर का मसला है, and you have no issue in coming to campus, you can come to campus and you can attend these classes on campus using the resources of campus. तुम्हारे पास अपना लैपटॉप या फोन तो होगा, लेकिन resources of campus यूज करने का मतलब ये है कि you can plug in for charging your equipment, and you will have available the Wi-Fi of the on-campus facilities. So you can go to the campus and attend the class there, sitting in a veranda, sitting in a classroom, sitting in a breakout room, or wherever you can. और मुझे भी ये कहा गया कि आप अगर कैंपस आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो कैंपस की रिसोर्सेज जो हैं वो कंटिन्यूसली अवेलेबल होती हैं, so teaching will go uninterrupted. लेकिन मैंने बुढ़ा हो गया हूँ और आना जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो मैंने एक रिक्वेस्ट सबमिट की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप घर से ले लें क्लास। अब मैं क्लास घर से लूँ या ऑन कैंपस लूँ, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जब मैं घर से लूँगा तो मेरा और आपका फिजिकल इंटरेक्शन होना नामुमकिन है, और मैं फिजिकल इंटरेक्शन चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि बुढ़ा आदमी हूँ। मुझे तो मतलब मुफ्ती साहब ने जुम्मे की नमाज से भी एग्जाम्ट किया हुआ है, तो why should I take risk going out and interacting with people? हाँ, आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, आपको गाइडलाइन, क्लास के अलावा मैंने व्हाट्सएप का दरवाज़ा खोल दिया है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे किसी ने कहा था कि फलाना जो है वो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। लेकिन ये है कि मैं रिसोर्सेज चूँकि शेयर कर रहा हूँ फेसबुक पे भी और LMS पे भी, तो कोई अगर फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता तो उसको कोई मसला नहीं, रिसोर्सेज यानी मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, और ये जो वर्ड फाइल बनाई हुई है मैंने अपने कोर्स की, ये भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। और आपने कुछ पूछना है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट यू सेंड योर क्वेरी और क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, or as and when I am free, I'll give you an answer to your query, and we can have discussion, arranging a
sort of meeting on Zoom. अगर 4-5 स्टूडेंट जो है वो कुछ पूछना चाहते हैं एक वक्त में, या एक स्टूडेंट ही पूछना चाहता है, तो Zoom meeting can be arranged any time. It may be after say 7 p.m. or 8 p.m. or until मैं रात को 1 बजे से तक 2 बजे तक काम करने वाला आदमी हूँ, तो किसी वक्त भी हम मीट कर सकते हैं, we can discuss. ठीक है? Okay जी, this introduction to status numerical analysis, it's an area of mathematics which seeks a solution to mathematical problems that may involve solving. बंद करेंगे सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर. Hello, can you hear me? सर आपकी आवाज कम आ रही है. अच्छा, can you hear me now? Hello. Yes, sir. Is it clear now? जी सर आ रही है आवाज. ये थोड़ा सर अब क्लियर है. गड़बड़ कर रहा है. मैं हेडसेट को दोबारा ट्राई करूंगा. मैंने हेडसेट दोबारा लगा लिया है. बेहतर है सब. आ रही है आवाज? यस सर अब बेटर है. अच्छा. यस सर. So in numerical analysis, we explore methods which can be used to solve non-linear equations, system of linear equations, or systems of non-linear equations. Now, you have been solving equations, linear particularly, in one unknown or two unknown. When you have one unknown, it's a simple solution. Ax plus b is equal to 0 is a simple equation, and you learned the solution of that in class 5 or 6. Later on, you had linear equations of two unknowns, and then you learn the method of solving system of equations simultaneously. Then you went on to consider problems involving more than two unknowns, and in linear algebra, if you have done the course on linear algebra, there you learn matrix method of solving systems of linear equations with large number of unknowns and large number of equations. We will revisit some of those methods, but in solving systems of equations, our more serious concern is about non-linear equations. So apart from solving equations, and why do we need methods of solve? The problem is that you can solve linear equation, you can solve quadratic equation. I'm talking about one unknown. Quadratic formula इस्तेमाल करके आप quadratic equation solve कर लेते हैं. If you are given cubic equation, you start having serious problems. Cubic, 4th degree, 5th degree, these equations are not easy to solve. अगर फैक्टराइजेशन किसी तरह समझ में आ जाए आपके कि हाँ भाई ये इस तरह से फैक्टराइज होगा, तो solving such a system is possible. लेकिन अगर फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रही है तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो एक बवाल बन जाता है. और ये इक्वेशंस जो हैं ये डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज में इस तरह की इक्वेशंस आती रहती हैं. उन एरियाज में जो जैसे फिजिक्स है, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस है, some of the areas in chemistry as well. You name any natural science and you talk about describing system using equations, single equation or multiple equations. तो उनको solve करने के methods जो हैं, तो जो end user है, for example from physics or engineering, he may not be very good in solving mathematical problem. तो उसको कुछ ऐसे methods चाहिए होते हैं कि यार मैथमेटिक्स ज़्यादा जाने बगैर
हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग सच मेथड्स जिसमें कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स के बजाय iterative process होगा. There we start with an initial approximate solution that can be obtained in some way or the other, that we will learn as a first thing in this course, and perhaps inshallah today's lecture. From equations we'll move on to the study of estimation techniques, and this two-word term, estimation technique, is the major part of our course that involves interpolation techniques, where we collect data while doing some experiment. We collect data while we are doing some survey. We collect data while doing a census. जो मर्दमशुमारी होती है उससे डेटा जमा होता है. In different areas of study, ऑब्जर्वेशन से या सर्वे के जरिए या एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं. द कलेक्शन ऑफ डेटा कैन नॉट बी कंटिन्यूअस इन द सेंस दैट जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूं तो मेरे पास फाइनाइट टाइम इंटरवल पे डेटा आता है. ये नहीं हो सकता कि मैं हर लम्हे का डेटा जमा करूं. फॉर एग्जाम्पल सेंसस, दुनिया में कहीं भी चले जाएं 10 साल से कम में पीरियड में नहीं होती सेंसस, और पाकिस्तान में तो 20-20 साल गुजर जाते हैं. तो इसी तरह अगर मैं कोई फिजियोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, किसी टिश्यू पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जैसे एक टिश्यू है बॉडी से अलग किया गया, द टिश्यू हैज सम electrical properties when it is live in the body, but once it is removed from the body, इसकी जो electrical properties हैं decay करती हैं. अब मैं उन डिकेइंग प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट जनरली पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर लम्हे देखूं कि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किस तरह डिके कर रही हैं. तो मैं एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम पर डेटा कलेक्ट करता हूँ. So whatever way we are collecting data, it is discretely collected. It is not collected uniformly for every movement. And in many such problems, we need some insight into the missing data. जैसे मैंने फर्स्ट कीजिए टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड अपने मेड ऑफिस से मांगा. मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ, टंडो LIR का मैंने डेटा मांगा वहाँ से. तो डेटा मुझे पूछेंगे भाई आपको डेटा कैसे चाहिए, वीकली चाहिए, डेली चाहिए, आवर्ली चाहिए. सो जितना ज़्यादा आप उस पे जाएंगे शॉर्ट पीरियड पे, शॉर्ट इंटरवल पे, उतनी ज़्यादा आपसे वो पैसे मांगेंगे. तो एनीवेज मैंने आवरली डेटा मांगा. अब आवरली डेटा जो है उससे मुझे ये पता चलेगा कि डेली कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर, और अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड पीरियड का डेटा है तो अब मुझे विद टाइम टेम्परेचर वेरिएशन जो है, मैं अगर अपने डेटा को प्लॉट करूं तो उससे अंदाजा होगा कि वेरिएशन कैसे हो रही है. एंड एट any time which is not at which the temperature was not recorded, मैं estimate कर सकता हूँ कि वहाँ क्या temperature था. So the estimation techniques. So there are different interpolation techniques. There are curve fitting techniques. There are least square approximation techniques. There are other techniques which are used nowadays in animation movies, and they come from this study of numerical analysis. जब डिज्नी ने कार्टून बनाने शुरू किए थे, वॉल्ट डिज्नी ने 100 साल पहले की बात है, तो टॉम एंड जेरी का अगर 5 मिनट का वो एक एपिसोड बना रहा था, human eye cannot differentiate if 8 or more pictures आपकी आंख के सामने से गुजर जाएं, तो आप उनमें से एक पिक्चर को अलग नहीं देख सकते. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मूवीज बनना शुरू हुई थी. तो फर्ज कीजिए
1 सेकंड में मैं 8 तस्वीरें बनाता हूँ, तो 5 मिनट के लिए कितनी होंगी? 1 मिनट में 8 तो 1 सेकंड में 8 तो 1 मिनट में 8 into 60 और 5 मिनट में 8 into 60 into 5, इतनी तस्वीरें मैं बनाता था। इस तरह की कि टॉम एंड जेरी भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, और ये हाथ से बनाया करता था। फिर उसकी तस्वीर खींची जाती थी सिल्वर लाइट पे कन्वर्ट करके, और फिर वो आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज जो है फिल्म रोल्स होते थे। आज क्या हो रहा है, सब काम डिजिटल हो रहा है। अगर मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ तो वो फ्रेम जो है वो कर्व्स के जरिए डेवलप होता है। जैसे हाथ से कर्व ड्रॉ करके टॉम एंड जेरी बनता था, अब वो कर्व्स जो है वो मैथमेटिकल टेक्निक से बनते हैं। So we'll discuss at least 1 or 2 such techniques जिससे मैं कोई भी arbitrary curve बना सकता हूँ. And the last part of this course is study of solving initial or boundary value problems, जिनमें से ये फर्स्ट कोर्स जो है इसमें हार्डली हमारे पास इतना टाइम होता है। आई एम सॉरी, ये जो आपकी जो चैटिंग चल रही है ना, मैं उस चैटिंग में हिस्सा नहीं ले पा रहा हूँ, और फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ आपसे आइडियाज शेयर करना। ओके, आप आपस में क्या क्या सर बातें? वो हाँ, नहीं सर, वो एक लड़का मैसेज कर रहा है कि सर को बोलो कि मुझे आने दें, इसीलिए मैसेज कर रहा था। एडमिट तो मैंने सबको किया हुआ है यार, मेरे वो पास। पता नहीं मैसेज कर रहा है ग्रुप पे कि हाँ, किसी और नाम से आ रहा है, ये क्या है, क्या मसला है? सर वो वेट लिस्ट में हो सकता है। सर आप अपने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक इनवाइट वो आएगा। हाँ, वो ये तो है, मैं इनवाइट करूं? नहीं, आई रिक्वेस्ट आई हुई होगी आपको कि अच्छा, अब्दुल्ला अख्तर की। जी जी, ये एक्सेप्ट कर हाँ ठीक है, आ गया आ गया। ओके खैर, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है और रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जी जी मैं जी। आपसे कह रहा था कि मैं आपके उस पर हिस्सा नहीं ले रहा चैटिंग में, और I'm more concentrating more on the concept that I'm trying to describe, or the basic idea of the course. तो ये फर्स्ट कोर्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और it's not that rigorous that I can go to extensive study of solving initial and boundary value problems. ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियली प्रॉब्लम क्या होती है? सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसमें इनिशियल कंडीशन दी जाती है, और अगर आप फर्स्ट कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हों तो आपको पता होगा कि पहले आप सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी इंटीग्रेशन टेक्निक के जरिए या कोई भी मेथड जो आपको सिखाया गया है, तो जनरल सोल्यूशन आता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। फिर आपको जो इनिशियल कंडीशन दी गई है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जनरल सोल्यूशन में, और फिर कांस्टेंट जो आर्बिट्री है उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर कहते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला है। तो यहाँ in this course we learn some method where we directly get that particular solution that we'll call solution curve. तो वो जो मेथड है उनसे हम solution curves हासिल कर सकते हैं बगैर differential equation को सॉल्व किए हुए। Let me again say that whatever methods we use to solve problems indicated in this first para, we need not know। हाँ, इसमें इंटीग्रेशन लिखना भूल गया हूँ मैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के भी मेथड्स हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एंड यूजर के लिए, वेदर इज इंजीनियर और फिजिसिस्ट। तो इफ आई नीड इंटीग्रल ऑफ सम वेरी टेढ़ा फंक्शन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो मैं उसको टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने सीखा ही नहीं उसको सॉल्व करना। And it can happen to even a major mathematics student. So besides, if we have to use a complicated procedure of finding out antiderivative or what we call integral, तो उसमें हमें वक्त लगाने के बजाय हम very quickly we can use a numerical method to get the solution of the
integral, and the integral we mean definite integral जिसमें लिमिट ली भी होती है ना, integrate from x is equal to a to b, x is equal to 2 to 3. तो ये जो definite integrals हैं, we can solve them using numerical techniques much rapidly, much more efficiently. These methods of solutions are iterative in the sense that we start with an initial approximation to the solution that can be obtained by a primitive or analytical or semi-analytical method. Then we produce better and better approximate solutions, which is a general strategy for every numerical method that we will explore in this. Now, these new approximate solutions appear as sequence of numbers or vectors. यानी हमने एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया, उससे एक नया अप्रोक्सीमेशन निकाला, फिर उससे एक नया अप्रोक्सीमेशन निकाला. अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट हो रहा है. Now the question is that कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो जनरेट हो रहा है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, जिसको मैं कहता हूँ कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा. It is converging or diverging. That is a concern that we have to learn during the course कि हम इसको कैसे explore करें. So in this first course on numerical analysis, we consider simpler problems that involve simpler algorithms that have lower complexity. All computer science students must be familiar with the term complexity. Roughly, it is defined the time taken to complete an algorithm, or it is also referred to as the number of arithmetic operations required to complete an algorithm. So जितने ज़्यादा आपको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर होता है, सम आर वेरी लीनियर ऑर्डर, some are for example Gaussian elimination process जो system of equation solve करने का है, उसकी complexity जो है वो order of n to the power 3 है, where n is the number of unknowns or the number of equations. Anyways, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा complicated problems address नहीं करेंगे, but simple to middle level complexity. So I call it lower complexity. For very simple problems, we can use only a usual scientific calculator. But to attain high degree of accuracy, we may need to use a worksheet like MS Excel. Microsoft Excel excessively इस्तेमाल करेंगे हम. I hope all computer science students are familiar with Excel, and the eco-maths students must, if they are not already used to with the Microsoft Excel, they should learn how to use Microsoft Excel, and I will be demonstrating the use of Excel during this course right from the beginning. However, still in cases we may come across more complex algorithms, and you need to develop full-fledged computer programs. Thereby, it is a good practice that we start making computer programs to apply algorithms that are very simple. तो अगर आप आसान methods के लिए programs बना सकते हैं, तो you can then go on to develop programs for more complicated. But मैं आमतौर पे इस फर्स्ट कोर्स में मैंने पहले भी कहा कि प्रोग्रामिंग को पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता. अगर कोई शख्स स्टूडेंट अपने मर्जी से करना चाहे तो बहुत अक्सर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग से करते हैं. I've been teaching this course since 1996, more than 23-24 years. तो फास्ट में पढ़ाया मैंने कोर्स, कंप्यूटर साइंस के मैथमेटिक्स वालों को पढ़ाया, माजू में पढ़ाया मैंने कोर्स. मुझे कंप्यूटर साइंस कराची यूनिवर्सिटी के और फास्ट के स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोग्रामिंग एफर्ट्स में बड़ा रिस्पांस मिला, और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स बनाए स्टूडेंट्स ने. खास तौर पे जो मैं अभी बता रहा था ना कि एनिमेटेड मूवीज में जो कॉम्प्लेक्स कर्व्स डेवलपमेंट होती हैं, तो some of them were familiar
अब मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जो एनिमेटेड मूवीज बनना शुरू हुई हैं उसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं कर्व्स बनाने के लिए, तो वो मोटिवेशन था, एक इंटरेस्ट था उसमें। Now, in this course, the topics that we shall cover include the following. ये मैं कुछ ना कुछ आपको बता चुका. Number one, methods for solving nonlinear equations of the type fx is equal to 0. And this is one equation in one unknown, and f is it can be a linear function or quadratic function. सारे linear function के लिए तो हमें कोई problem भी नहीं है. Quadratic के लिए भी हमें problem नहीं है. Again, beyond that, क्यूबिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, बला बला उल्टे सीधे फंक्शन एफ के अंदर हो, तो फिर हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो मेथड इस्तेमाल करने जो मेथड हम यहाँ सीखेंगे. सो दीज मेथड्स कैन एक्सटेंड टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ नॉनलीनियर इक्वेशंस लाइक दिस. यानी कई इक्वेशंस हो और कई अननोन्स हो, लेकिन हम लोग अगर गए बियॉन्ड वन इक्वेशन एंड वन अननोन, तो इट विल ओनली कंसीडर two equations in two unknown to demonstrate the basic idea के higher dimension में हम problem solve करना चाहें तो numerical method कैसे develop होगा. Second part, algebraic and iterative या numerical methods for solving system of linear equations. ये अगर आप linear algebra कर चुके हैं तो you already know how to solve a linear equation using matrix method. फिर मैंने एस्टिमेशन टेक्निक्स का जिक्र किया था और उस पर कहा था कि दिस इज मेजर पार्ट. इंटरपोलेशन टेक्निक्स कई तरह की, स्प्लाइन इंटरपोलेशन विच इज इन द फैशन. रिसर्चर्स ज़्यादातर स्प्लाइन इंटरपोलेशन प्रेफर करते हैं अगर वो कोई सीरियस रिसर्च कर रहे हो जिसमें डेटा उनके पास अवेलेबल हो और आप चाहते हो कि ओवरऑल डेटा का बिहेवियर किस तरह का है, तो स्प्लाइन इंटरपोलेशन है. कर्व ट्रेसिंग एंड लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन, इसके अलावा बी स्प्लाइन और सी स्प्लाइन और बीजियर कर्व, ये मैंने यहाँ पे लिखे नहीं लेकिन these are all parts of this. Then we'll finally come to methods of numerical differentiation as well as numerical integration. Numerical differentiation or numerical integration. न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो एक एकेडमिक इंटरेस्ट है हमारा, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने अभी बताया था कि सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर और हायर ऑर्डर, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम डेरिवेटिव्स को डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर सकें. तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन बन जाती है. एंड देन वी हैव लीनियर मेथड्स अवेलेबल जैसे गॉस एलिमिनेशन है. सो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस है तो हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तौर पर ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं. एंड द कमेंट दैट आई वाज गोइंग टू मेक, आई विल डिले दैट कमेंट. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का इंटीग्रल अगर हमें निकालना नहीं आता तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इज आवर बेस्ट बेट टू गेट द सॉल्यूशंस. Finally, solving initial value problems. If time allows, some methods of solving boundary value problems as well. I already talked about the book. The major textbook is Girard and Wheatley, and reference book is Numerical Analysis by Burden and Fears. This book is much more mathematically involved. Those who have a flavor for mathematics, they can enjoy studying this book for the methods that we discuss in this course. मेरा इन दो में से पहली किताब जो है वो मेरी टेक्स्ट बुक है इस कोर्स के लिए. जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ इस कोर्स में मोस्टली मैं इस किताब को फॉलो करता हूँ. हाँ, एक आध चीज़ तो टीचर कहीं ना कहीं तो डंडी मारते हैं ना, और मैं भी मारता हूँ, और डंडी इस तरह से मारता हूँ कि एक ऐसी भी चीज़ पढ़ा दी जो किताब में नहीं है, या किताब के कई टॉपिक स्किप कर दिए. और तुम लोगों ने अक्सर बेशतर किताबों के इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि ऑथर जो है वो प्रीफेस में डिस्क्राइब करता है कि अगर आपने इस लेवल पे कराना ये किताब पढ़ानी है तो आपको
ये चैप्टर फॉलोड बाय दिस चैप्टर फॉलोड बाय दिस चैप्टर और बस दैट्स इट। और अगर आपने इस लेवल पर पढ़ानी है तो वो आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स देता है। सो इन दिस इंट्रोडक्शन एक चीज रह गई जो मैंने लिखी भी नहीं है, पार्टली इसको बताया है जब मैं बात कर रहा था कि हम जब भी न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हम एक सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और हमें ये देखना होता है कि सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स जो हैं ये कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं तो कितनी तेजी से कन्वर्ज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहा है तो मेथड इतना यूजफुल नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए। दिस इज अवर मेजर कंसर्न फॉर एवरी मेथड दैट वी स्टडी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कितनी तेजी से कर रहा है। अगर रैपिडली कन्वर्ज कर रहा है तो मेथड इज वर्किंग गुड फॉर दैट प्रॉब्लम। अगर रैपिडली कन्वर्ज नहीं कर रहा तो अब हम या तो कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे कन्वर्जेंस जो है वो स्पीड अप हो जाए। बट ये जो स्पीड अप ऑफ कन्वर्जेंस जो है या एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये मैं हायर लेवल कोर्स में कराता हूँ, इसमें नहीं कराता, अक्सर मिस कर देता हूँ। The beauty of methods that we study in this course named numerical analysis is that whether you can solve a mathematical problem using usual techniques of mathematics or you're not able to solve. Being end user, you may not be expert of mathematics and you're not able to solve a problem. But numerical analysis provides us with methods that apart from divergence, अभी जो मैंने कहा ना कि कन्वर्ज कर रहा है तो फिर वो असल सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अगर कन्वर्ज कर रहा है मेथड, द ब्यूटी इज दैट कि यू कैन गेट एज एक्यूरेट अ सॉल्यूशन एज यू वांट। एंड फॉर दैट सुना होगा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो जितनी दफा तुम आइटरेटिव प्रोसेस रिपीट करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट, अगर प्रोसेस कन्वर्ज कर रहा है तो उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूमेरिकल मेथड की बात कर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम ऐसे मेथड्स सीखेंगे कि मैं इंटीग्रेट करना जानता हूँ या नहीं जानता है। फंक्शन जो इंटीग्रल में इन्वॉल्व है उसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है या नहीं आता है। मैं एंड यूजर हूँ या मैथमेटिक्स मेजर या पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ। देयर कैन बी फंक्शंस जो कि नहीं होते इंटीग्रेट, और हो सकता है आपने इंटर से लेके अब तक या ए लेवल से लेके अब तक ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि वो ये फलाना टीचर ने फलाना इंटीग्रल दिया था, वो तो इंटीग्रेट होता ही नहीं। बट इफ यू आर गिवन अ प्रॉब्लम where that integral is involved and you have a definite integral, that means जिसमें लिमिट दी हुई है, तो आप उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन किस ऑर्डर की होगी, दैट इज ऑल अप टू यू। कितनी एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी को मैं कैसे पहचानूंगा। फर्स्ट करो किसी एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो 3.7567 है। अब मैं जो सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो इसके करीब आएंगे और करीब आएंगे और करीब आएंगे, तो हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन पर पहुंच जाऊं, लेकिन मोस्टली इट डजंट गिव any method of numerical analysis never give you accurate solution. It gives you approximate solution. How accurate? As accurate as you want. तो हमेशा कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी। एंड जब भी मैं एक इटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, रिपीटेटिव प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू or from my this course point of view, what I need is some condition on the basis of which I stop the process. To stop the process, I need to have a condition. Now that was background
introduction to the subject that we call numerical analysis, and I will. नींद आ गई? हैं? Let us move forward. Should I go forward or backward? Back to the course outline. Can you see the course outline on your screens? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we see that मैंने introduction दिया आज आपको issues in solving in general. यहाँ लिखा है solving nonlinear equations. मेरा आज प्रोग्राम ये था कि बाइसेक्शन मेथड का भी जिक्र करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. So we have different methods of solving a nonlinear equation involving bisection method, Newton's method, secant method, method of false position, fixed point iteration method, issues of convergence associated with different methods of root finding, acceleration of convergence, मौका मिला तो जरूर कराऊंगा. पोलिनोमियल एक लार्ज पोलिनोमियल है तो उसके लिए मैं जीरोस रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल को हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं कि अगर x की वैल्यू एक पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है. So Mueller's method, Horner's method, Curiel algorithm. This Curiel algorithm is a fantastic algorithm which gives a solution to polynomial equations. मैं इससे पहले यानी Curiel algorithm से पहले जितने भी मेथड यहाँ लिखे हुए हैं, इन सब मेथड से मैं एक वक्त में किसी इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकाल सकता हूँ. You know that a fifth degree equation can have 5 solutions. लेकिन Curiel algorithm के अलावा बाकी सारे मेथड यहाँ पे जो है वो एक वक्त में एक सोल्यूशन तलाश करते हैं. Curiel algorithm की ब्यूटी ये है कि एक वक्त में ये सारे सोल्यूशन तलाश करता है, जिसकी वजह से ये बहुत स्लो है. So we use Curiel algorithm just to get an initial approximation कि रूट जो है वो किस नंबर के करीब है, उसके बाद हम स्विच कर देते हैं किसी दूसरे मेथड पे जो रैपिडली हमें देता है. So we will very quickly go through solving system of linear equation methods, and we'll concentrate more on मैं तुमने देखो इसमें मैंने एक ही लाइन लिखी हुई है क्योंकि ये इशू है लीनियर अलजेब्रा का. हमने यहाँ कंसंट्रेट करना है ऑन न्यूमेरिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉनलीनियर इक्वेशन. ओह दिस इज नॉनलीनियर इक्वेशन. अभी लीनियर इक्वेशन मैंने जिक्र ही नहीं किया. बार मेजर इज लीनियर इक्वेशंस, नॉनलीनियर इक्वेशंस को भी हम टच करेंगे. फिर पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड इंटरपोलेशन, Lagrange interpolating polynomials, divided difference when the data is unequally spaced, and forward difference when data is equally spaced. मैं भी बताया था आपको कि डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम डिस्क्रीटली कलेक्ट करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करें. तो एट टाइम्स हमारे पाकिस्तान में सेंसस डेटा जो है वो अनइक्वली स्पेस्ड है, जबकि अमेरिका में और एडवांस कंट्रीज में इक्वली स्पेस्ड होता है, क्योंकि वहाँ हर 10 साल की बात होता है. पाकिस्तान में हर 10 साल की बात नहीं होता, कभी 15 साल बाद होता है, कभी 20 साल बाद होता है. तो ये पाकिस्तान का कंसेंसस डेटा जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है. तो इक्वली स्पेस्ड के लिए ज़रा अच्छी टेक्निक्स होती हैं, सिंपल टेक्निक्स होती हैं, लेकिन अनइक्वली स्पेस्ड के लिए ज़्यादा मुश्किल टेक्निक्स होती हैं. द फर्स्ट टू आर फॉर अनइक्वली स्पेस्ड. देन कर्व डेवलपमेंट और spline, B-spline and cubic splines, then spline interpolation, then Bezier curves. ये Bezier curves जो हैं या Microsoft का जो प्रोग्राम है पेंट उसमें भी अवेलेबल है, और it is excessively used for producing frames of animated movies. इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे. फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जिसमें सेंट्रल एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो मैंने बताया कि ये असल हम यहाँ पे सिर्फ इसको एकेडमिकली एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे हम वो चीज़ें डेवलप करते हैं जो अल्टीमेटली सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देती हैं, जो किससे गॉस एलिमिनेशन के जरिए सॉल्व किए जा सकते हैं. It's a very good exercise during this course. अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसका एक प्रोग्राम बना लें. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बाद रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन जो है वो कभी तो मैं कराता हूँ, कभी नहीं कराता, पता नहीं इस दफा कराऊंगा नहीं कराऊंगा. एलिमेंट्री न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन
revisiting Riemann integration. I will not revisit Riemann integration अभी यहाँ पे इस कोर्स में. Yes, I can go briefly. फिर न्यूटन कोर्स फॉर्मूलों में आ जाएंगे. ट्रिपेजाइडल रूल जो आप शायद पहले भी पढ़ चुके हैं. सिम्पसन्स रूल के दो किस्म के हैं, जो 1/3 और 3/8 कहलाते हैं. और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को अगर हम इस टॉपिक तक पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि हमने इस कोर्स का मुकम्मल हक अदा कर दिया, जिसमें डिफरेंट मेथड है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, एक कंडीशन दी हुई होगी, एंड वी विल एक्सप्लोर दैट. सो दैट is description for the course outline, and now I switch over to what? Your questions, if you have. Otherwise, I discussed one small thing and wind up today's discussion. That small thing is that कि मुझे कोई इक्वेशन दी हुई है fx is equal to 0, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है x cube plus x square minus 3x minus 3 is equal to 0. आप में से कुछ स्मार्ट लोग जो हैं वो फौरन कहेंगे यार x स्क्वायर इधर से कॉमन लिया, माइनस x इधर से कॉमन लिया, x + 1 कॉमन आया, एक रूट -1 है. हाँ ठीक है. मैंने कहा कि क्यूबिक इक्वेशन एंड हायर डिग्री इक्वेशन अगर फैक्टराइजेशन हो जाती है तो मैं सोल्यूशन निकाल लेता हूँ. जब मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकाल लिया तो फिर बाकी बच्चे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा. लेकिन आई वांट टू डेमोंस्ट्रेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लोकेटिंग अ रूट ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन. सो हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं. आप कहेंगे भाई ग्राफ बनाना, अरे भाई ये तो बहुत ही प्रॉब्लम था हमारे लिए जब हम कैलकुलस कर रहे थे, और मैं आपसे कहाँ ग्राफ बनवाने की बात कर रहा हूँ. तो जरा हो जाए फिर a touch of use of Microsoft Excel. So, can you see this Excel sheet? Empty Yes, sir. Excel sheet. Yes. अब मैं Yes, यहाँ sir. पे ग्राफ बनाने के लिए क्या काम करता हूँ? X, fx. ये मेरी हेडिंग है. -5 और मैं यहाँ पे वही इक्वेशन लिख देता हूँ. Is equal to x. Now the value of x is coming from the cell number C3. तो मैंने लिखा C3. पहली टर्म थी raised to power 3 प्लस दूसरी टर्म थी x square. X is in C3, so I write down C3 and raised to power 2. अगली टर्म थी -3x, and that means C3. हाँ भाई, anybody not familiar with what I'm doing right now? हैं? अगर नहीं हो फेमिलियर तो सीख लो ये क्या हो रहा है. ये मैंने फंक्शन वैल्यू निकाल ली. अच्छा, ये फंक्शन वैल्यू निकाल ली तो देखो जरा, -4 कर दूं, चेंज हो गई फॉर्म. -3 कर दिया, चेंज हो गई. -2 कर दिया, चेंज हो गई. दैट्स गुड. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू चेंज कर दूं और y की वैल्यूज प्रोड्यूस करूं. तो मैं ये करने के लिए C3 में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, यानी x की वैल्यू में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, एंड आई गो इन शॉर्ट स्टेप्स. ओके. अब यहाँ जो मैंने फंक्शन का फार्मूला लिखा था वो मैं ड्रैग किया, ये वैल्यूज आ गई. अब यहाँ पर है पिछली x वैल्यू +0.1, यहाँ पर है फंक्शन वैल्यू एट दिस, यहाँ पर है फंक्शन वैल्यू एट दिस. अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी ड्रैग कर देता हूँ,
और करता चला जाता हूँ, और मेरे मकसद के लिए एक ग्राफ डेवलप हो गया। आप कहेंगे ना कहाँ नजर आ रहा है ग्राफ, मैं भी आपको दिखाता हूँ ग्राफ। अगर आपने एक्सेल शीट सीखी है तो ग्राफ यूं बनता है। तो मैं गया इंसर्ट पे, डेटा सेलेक्ट किया, ये डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई स्कैटर सेलेक्ट किया और एक स्मूथ कर्व डेवलप कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया स्मूथ कर्व। ठीक है, this is the way I draw the graph. Wow. And you can easily make graph of any function using this. हाँ ये जी क्या कहा? So Excel is a very useful tool, और हमें algebraically जब हमने फैक्टराइजेशन करके देखा था, हमने कहा था कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो हमारी इक्वेशन का रूट है। तो x इज इक्वल टू -1 पे ही x एक्सिस से गुजर रहा है। अच्छा, मैं जरा चाहता हूं कि इसको हटा दूं और इस डेटा को एक्सटेंड करूं। सर ये रिपीट नहीं हो रहा? अच्छा, रिपीट हो गया? हाँ, -1 के बाद रिपीट हो रहा है। अच्छा, तो फिर मैं इसको दोबारा कर दूं। हाँ सही कह रहे हो। म्यूजिक फेड हो गया जी। अब नहीं होगा। आ गए नहीं पॉजिटिव एक्स वैल्यूज? जी सर, अब आ गया। ठीक, अब ये डेटा मैंने सिलेक्टेड है या दोबारा सेलेक्ट करूं? दोबारा सेलेक्ट करता हूं। जो मजे की चीज दिखाने की है, आई शो दैट। ग्राफ कैसे बनाना है? डेटा सेलेक्ट किया जिसका ग्राफ बनाना है, इंसर्ट दबाया, एक्स वाई स्कैटर, और उसमें से स्मूथ कर्व ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। दिस हियर इज अ ग्राफ। Now this blue curve is y is equal to fx, जबकि हमारी इक्वेशन है fx is equal to 0। इसका मतलब हमें वो x तलाश करना है जहां पे fx यानी y is equal to 0, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, which can be confirmed from this data set। -1 किधर गया? वो नीचे रह गया। हाँ, और पीछे भी है -1 और -2 के दरमियान, लेकिन -1 और -2 के दरमियान जो ये जो क्रॉस हो रहा है ग्राफ, हो रहा है ना क्रॉस एक्स एक्सिस से, इसका मतलब यहाँ पे कहीं y इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो पॉइंट कैलकुलेटेड नहीं है। ओके, इस डिस्कशन का एक पर्पस ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्विकली मैं कैसे बना सकता हूं, एंड फॉर दैट एक्सेल इज द मैजिशियन। अब देखिए, मैं जरा स्क्रीन स्विच कर रहा हूं, coming back to can you see that worksheet again, locating a root? Can you? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें असल में हमारे पास इक्वेशन तो ये थी जिसको सिंबॉलिकली यहाँ लिखा है fx is equal to 0। इसका मतलब है हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 चाहिए, तो वो वैल्यू 0 किस x के लिए होगी? दैट इज अवर प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम हियर इज डेमोन्स्ट्रेटेड कि y वैल्यू यहाँ 0 हो रही है, यहाँ 0 हो रही है और यहाँ 0 हो रही है। तो एक x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, 1, 2 और 3। ये जो -1 था ये तो बहुत आसान सी बात थी, लेकिन हम कुछ और गौर करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ जो जिस x के लिए
y 0 हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो है x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इसकी एक साइड पर y की वैल्यू नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव। अच्छा, एट दिस पॉइंट यू अगेन हैव दिस प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। यहां भी x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो उसकी एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। That is the idea. That is the point that I want you to note as a first lesson of numerical analysis. कि अगर मुझे किसी इक्वेशन f(x = 0) like this one, इसके सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं ग्राफ की मदद से ये देख सकता हूं कि रूट्स कहाँ वाक़ हैं। लेकिन मैं हमेशा ग्राफ बनाने की पोजीशन में हो सकता है ना हूं, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो अभी देख कह रहे होंगे यार ये एक्सेल में क्या जादूगरी हो रही है, यानी उनको एक्सेल की सिरे से पता ही नहीं हो। तो उनके लिए सिर्फ ये छोटी सी टेबल जो है बड़ी यूजफुल है। ये छोटी सी टेबल, x = 0 पे y की वैल्यू -3 है, x = 1 पे y की वैल्यू -4 है, x = 2 पे y की वैल्यू 3 है, x = 1 पे y की वैल्यू -4 है, x = 2 पे y की वैल्यू +3 है। Change of sign rule. This is what is the actual message of this discussion. Mathematics की theorem है, वो कहती है if a function f is continuous over an interval a to b and the signs of fa and fb यानी end point पर फंक्शन वैल्यूज के साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब है एंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यूज की को मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब चाहे लेफ्ट वाला पॉजिटिव हो और राइट वाला नेगेटिव, चाहे लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव, then there exists at least one point C between A and B where the function value must be 0. And this is demonstrated in this graph and this table. Now, wherever I find that I have an equation f(x = 0, where f is a continuous function, every polynomial equation, and polynomial is a continuous function, if it shows me change of sign for two x values, x = 1 पे -4, x = 2 पे 3, so this change of sign means कि 1 और 2 के दरमियान में एक पॉइंट ऐसा है जहां f(x = 0) यानी इस इक्वेशन का रूट मिलेगा मुझे। This is what is locating the root. With this comment, I terminate today's discussion, and I'll continue from this location of root and further examples tomorrow, inshallah. थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी। I was giving final comments. Are you people Hello? able to? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे कनेक्शन में। Can you? गुड हो गया जी। मतलब what I had to discuss today is completed, and now I'm terminating the session, and it will take around 15 to 20 minutes to सर upload चैट the पे recording. जवाब दे दें। चैट पे जवाब दे दूं अभी फौरी तौर पे? किधर है यार चैट? ये सर एज इन चैट पे नहीं, चैट पे जो सवालात लोगों ने पूछे उसका जवाब दे दीजिए। यार सवालात के लिए मैंने तुमसे कहा कि मैं चैट जो है वो नहीं देखूंगा। जो सवालात है ना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे दिया, व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लो। और इस वक्त सर वो इस तरह आपका ना वो स्पैम हो जाएगा, काफी ज्यादा आएंगे। आप एक काम जी करते हैं, सर। आप एक ग्रुप बनवा लीजिए व्हाट्सएप का ना, तो उस आप पे एक ही जगह आपके सारे आप लोग बना लीजिए ग्रुप, मुझे भी शामिल कर लीजिए। आप बना लीजिए ग्रुप, क्योंकि मेरे पास तो नंबर नहीं है ना। मैंने अपना नंबर दे दिया, आप लोग जो है वो बना लीजिए। तो मैं फिल वक्त टर्मिनेट कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ग्रुप बना हुआ है, अच्छा यार अगर ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो प्लीज लिंक शेयर कर दो IB एक्टिव क्लासेस पे। और मेरे मेरे नंबर ख्याल है सर मुझे फेसबुक ग्रुप बना इंक्लूड हुआ कर। फेसबुक ग्रुप तो मेरा बनाया हुआ है ना। व्हाट्सएप का ग्रुप आप बना लीजिए। जब भी मुझे व्हाट्सएप
अवीम अकरम ने कहा है कि ग्रुप बना हुआ है। ये कौन सा ग्रुप बना हुआ है भाई? व्हाट्सएप का अगर बना हुआ है तो मुझे शामिल कर लो। सर व्हाट्सएप का बना हुआ वो कर लेगा। अच्छा, मेरा क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था तो चैट सारी साफ हो गई। सर ये जो नाम चेंज करके आ रहे हैं इनको प्लीज एंटर नहीं करने दें सर, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें भी सर। देखो भाई, एक चीज है, ये जो डिस्टरबेंस वाले लोग हैं, ये जो डिस्टरबेंस, कोरोना वायरस को सर निकाल दें पहले। ये मैं इन चीजों पे तवज्जो नहीं देता हूँ, मैं अपना काम करता रहता हूँ। हमारा बाप आज तक कोरोना वायरस को निकाल सका, तू निकालेगा कर लो यार। तो ये तुम सर आप कॉमेडी इन्हें कर रहे हो ना, निकाल दें। अच्छे नहीं लग रहे हो। कोरोना वायरस के नाम से जो आए हुए हो ना, अच्छे नहीं लग रहे हो तुम जो कॉमेडी कर रहे हो। अगर मैं इस तरह लोगों पे टाइम लगाने लगा तो मैं पढ़ा तो सकूंगा नहीं, और मुझे नहीं पता, मैं इसमें टाइम भी नहीं लगाना चाहता कि कौन शख्स मुझे क्लास में डिस्टर्ब कर रहा था। मैं उसको आइडेंटिफाई करूं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिपोर्ट करूं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सर ऐसे तो ये ना खुद पढ़ेंगे ना हमें पढ़ने देंगे सर। देखो 75 मिनट सुकून से मैंने पढ़ा लिया। I was going to terminate the discussion and I'm going to terminate it now, and I have to see whether. Thank you, sir. Thank you very much. See you tomorrow. Thank you, sir. सही सर।